Greetings of the day, everyone. This is Vinita as maths teacher for class ninth from Bal Bharti Vidyapeeth, Gohana. Bal Bharti Vidyapeeth, a home of true learning and ultimate pleasure. So, dear students, today we are going to start the basic concept of exercise 1.5. So, let's begin. According to the basic concept, our first point is how to do addition, subtraction, multiplication and division of like and unlike irrational numbers. बच्चे, in our previous class of class 8, we have already discussed about how to add, subtract, multiplication and division of rational numbers. And now here is the topic of doing addition, subtraction, multiplication, division of like and unlike irrational numbers. Okay, so how to do that? How we can perform addition, subtraction, multiplication and division in the case of irrational numbers. Okay, so let's begin with our first point, add. So you are having 2 under root 2 plus 7 under root 3 and minus under root 2 plus 2 under root 3. Okay, so बच्चे you just write in the form of columns, like in the form of column you just write down these points. So 2 under root 2 plus 7 under root 3. अब बच्चे as we know that हम हमेशा like terms को एक साथ लिखते हैं. ओके, सो हम इसके साथ वही लाइक टर्म लिखेंगे जिसके पीछे क्या होगा, अंडर रूट 2 ही होगा. ओके, सो विच नंबर, दिस पॉइंट ना, सो वी जस्ट राइट माइनस अंडर रूट 2 और इसके आगे कुछ भी नहीं है एज अ प्रोडक्ट, सो वी जस्ट लेट इट 1. ओके, आफ्टर दैट प्लस, अब ये देखो बच्चे 7 रूट 3 है, ये भी 2 रूट 3 है, सो वी कैन राइट इट. ओके, सो बच्चे अब देखो रेशनल नंबर्स में रेशनल नंबर्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं और इरेशनल नंबर्स को हम एज इट इज़ राइट डाउन करते हैं इन द केस ऑफ एडिशन. ओके, सो बच्चे देखो अंडर रूट 2 तो इनका है ही रेशनल नंबर, सो वी जस्ट राइट इट हेयर. इसमें अंडर रूट 3 था, वी जस्ट राइट इट अंडर रूट 3. अब बच्चे परफॉर्म द एडिशन प्रोसेस. अब यहाँ पर पॉजिटिव 2 है, यहाँ पे नेगेटिव 1 है, तो 2 माइनस 1 1. आफ्टर दैट 7 और 2, 7 प्लस 2 इट विल बी 9. ओके, so that would be your answer. Okay, so let's begin with the next topic, multiplication. So suppose we are having two numbers, 2 under root 2 multiply 3 under root 5. ओके, सो दीज आर इरेशनल ना, क्योंकि अंडर रूट 2 को और अंडर रूट 5 को आप प्रॉपरली सॉल्यूशन नहीं दे सकते, सो दीज आर इरेशनल नंबर्स. बट नाउ द पॉइंट इज हाउ टू डू मल्टीप्लीकेशन, हाउ वी कैन परफॉर्म द मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस इन दैट. बच्चे, रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई ऑलवेज वी कैन डू विद रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज मल्टीप्लाई विद irrational number. So you just multiply 2 with 3 firstly, 2 multiply 3 and after that under root 2 multiply under root 5, so that would be here. Okay, under root 2 multiply under root 5, so 2 3s are 6 और under root 2 और under root 5 को बच्चे आप together लिख सकते हो 2 multiply 5, क्योंकि दोनों पे ही है under root तो. Okay, so we just write it under root 5. Okay, so that would be your solution, 6 root 10. Okay, is it clear now? So next point, 2 under root 5 multiply under root 3. अब बच्चे देखो ये हमारे पास रेशनल नंबर है, अब यहाँ पे कोई भी रेशनल नंबर नहीं है, सपोज हम इसको लेट कर लेते हैं 1. ओके, सो 2 1 जा 2. अब रूट 5 की मल्टीप्लाई किससे करोगे बच्चे आप, रूट 3 से, सो यू जस्ट डू दैट and you are getting under root 15. So here is your solution, 2 as it is and under root 15. So that would be your answer. Clear everyone? Our next topic is divide. How can we perform the operation of division in the case of if we are having irrational numbers? So बच्चे let's see through example. Suppose we are having 8 under root 15 and we have to divide this number with the 2 under root 13. ओके बच्चे, आप ये देखो आप इसको डिवीज़न को पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हो. ओके, अब आप इसको डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8. ओके, सो बच्चे आप ये देखो ये तो बिकॉज दोनों रेशनल नंबर थे तो ये कट हो गए, डिवीज़न हो गया. अब हम डिवीज़न इरेशनल की इरेशनल के साथ ही कर सकते हैं, बट अंडर रूट 15 एंड अंडर रूट 13 इट वुड नॉट बी पॉसिबल ना, सो यू जस्ट राइट इट एज इट इज़, क्योंकि तो कट ही नहीं सकता. सो 4 into under root 15 by under root 13. Okay,
Suppose we are taking one more example. 7 under root 40 divided by 5 under root 8. अब बच्चे देखो, if we are just writing in this way 7 और 5 they won't be cut, ये तो कट नहीं होंगे. Okay, so we just write it as it is 7 by 5. And from here under root 40 and under root 8, as you know, आपको पता है कि इरेशनल नंबर को हम इरेशनल से कट कर सकते हैं. So 8 1 जा 8, 8 5 जा 40. Okay, so what is left only here? Under root 5. So 7 under root 5 by 5, that would be your solution. Okay, clear? Now we are going to start our exercise 1.5. So our first question is, classify the following numbers as rational or irrational. So बच्चे इन numbers में आपको ये बताना है कि ये number whether they are rational or irrational. Okay, so we are having 5 points. So let's begin with the solution. So our first point, 2 minus under root 5. 2 minus under root 5 बच्चे, as we know under root 5 is a irrational number. और बच्चे according to the terms of irrational or rational numbers, we are having two types of points that we have to remember it very well. That every irrational number में जब भी हम कोई rational number add करते हैं, then also we are getting irrational number. और रेशनल नंबर में अगर हम इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं देन ऑल्सो वी आर गेटिंग इरेशनल नंबर. ओके, इट मीन्स इरेशनल नंबर का फंक्शन आप किसी भी रेशनल नंबर के साथ चाहे एडिशन में करो या सब्ट्रैक्शन में करो, आंसर इन द फॉर्म वी आर गेटिंग दैट इज इरेशनल. ओके, सो हेयर इज ऑल्सो दैट थिंग दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट एन इरेशनल नंबर फ्रॉम अ रेशनल नंबर. ऐसे ही करना है ना, हमें एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है. सो व्हाट वी आर गेटिंग इरेशनल नंबर, सो इट मीन्स दैट नंबर वुड बी अ इरेशनल. नेक्स्ट पॉइंट, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23. इन दिस फॉर्म वी कैन राइट इट. अब बच्चे देखो, एक प्लस में 23 है और एक माइनस में 23 है, दे वुड बी कट. ओनली वी आर हैविंग 3 और 3 को हम रेशनल कर सकते हैं. प्रूफ हाउ? बाय पुटिंग 1 इन इट्स डिनोमिनेटर. ओके, थर्ड पॉइंट, 2 अंडर रूट 7, 7 अंडर रूट 7. ओके, अब बच्चे देखो अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 दैट वुड बी कट. ओके, सो वट वी आर हैविंग ओनली 2 by 7 and we know that 2 by 7 is a rational number because these are in the form of p by q. Okay, last point, 1 by under root 2. As we know under root 2 it won't be solved. ये कभी solve नहीं होता. They are going further because that would be a non-terminating and non-repeating number. So it means that would be an irrational number. And the last point, 2 pi. 2 pi means pi, we know that it is an irrational number. So that would, the answer also will be irrational. Okay, got it? Second question is, simplify each of the following expression. We are having these expressions and we have to solve it. Okay, so let's start with the solution. So our first point, 3 plus under root 3 into 2 plus under root 2. But as we already have done in our 8th standard, how to do multiplication by बाइनोमियल नंबर विद अ बाइनोमियल. एक बाइनोमियल की दूसरे बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं. सो बच्चे, हम पहली टर्म लेते हैं, उसकी पूरी सेकंड वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं. उसके बाद हम सेकंड टर्म कैरी आउट करते हैं और उसकी मल्टीप्लाई हम पूरे नंबर से कर देते हैं. सो एज वी नो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 2 अंडर रूट 6. ओके, और बच्चे ये आगे तो होगा ही नहीं क्योंकि बिकॉज ऑल दीज नंबर्स, ऑल दीज टर्म्स आर अनलाइक ना, तो इसमें आगे कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ भी परफॉर्म हो नहीं सकता. सो दैट वुड बी योर सॉल्यूशन. आर नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट थर्ड, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर. बच्चे, एज यू नो in our 8th standard also we have already learned about some identities, like we are having a plus b whole square. So and the expansion of this property is, this identity is a square plus b square plus 2ab. Okay, so bachche, we will use this identity in this point. Okay, how? At the place of a we can write under root 5. Okay, and at the place of b we can write under root 2. So it means
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई ए वैल्यू √5 एंड बीज वैल्यू √2. सो बच्चे देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, वट यू गेट 5 ना, एंड आफ्टर दैट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया एंड देन यू गॉट 2 एंड 2 हेयर, एंड इन दोनों के आप मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी 5 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट है, सो 5 2 ज़ा 10 और 5 और 2 कितना होता है बच्चे 7, क्योंकि दीज आर लाइक टर्म्स ना, हम इनको ऐड कर सकते हैं. सो यू गॉट 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, so that would be your solution. Fourth point, √5 minus √2 into √5 plus √2 means to say you have to use here this identity a plus b, a minus b, that would be equals to a square minus b square. It means at the place of a we can write √5 and at the place of b we can write √2. So you just do that. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर, लाइक दैट यू हैव टू राइट. अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल, फ्रॉम हेयर यू आर हैविंग 5 माइनस और हेयर यू आर हैविंग 2, सो 5 minus 2 3, so that would be your answer. Clear everyone? Got it? So dear, our third question, recall pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter. Say that is पाई इक्वल टू सी बाई डी. बच्चे उसने बोला है कि इफ़ वी आर सेइंग दैट कि पाई सी और डी का रेशो है, सी मतलब सर्कमफ्रेंस, डी मतलब डायमीटर ऑफ एन सर्कल. ओके, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट, ये कॉन्ट्राडिक्ट लगता है. कॉन्ट्राडिक्ट मतलब ये गलत प्रूफ कर रहा है अपने आप को, इस फैक्ट को, किस फैक्ट को, दैट पाई इज़ इरेशनल. बच्चे एज वी नो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोज़ दैट पाई इज़ अ इरेशनल नंबर. वाई? What is the reason behind that? And the reason is because pi is non-terminating and non-repeating. Okay, so it means it would be irrational. लेकिन अगर इसको हम c by d की फॉर्म में राइट कर सकते हैं तो ये तो p by q की फॉर्म में हो गया, और p by q की फॉर्म में है, इसका मतलब ये नंबर रेशनल है. तो अगर ये रेशनल है तो पाई भी तो इसके इक्वल है, तो पाई भी रेशनल होना चाहिए. बट वी नो दैट पाई इज़ इरेशनल, ये तो फैक्ट है. तो ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. तो हम इस कॉन्ट्राडिक्ट को कैसे रिजॉल्व करेंगे, रिसॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये गलत प्रूफ नहीं है इसका. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन. सो हियर इज़ द सॉल्यूशन. एज वी नो पाई को बच्चे हम सी बाई डी की फॉर्म में लिखते हैं. ओके, अब बच्चे देखो अगर सी और डी रेशनल है तो इट मीन्स ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए. ठीक है, सो सपोज करो ये हमारे पास एक सर्कल है. अगर हम एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस जानना चाहते हैं, इट मीन्स हमें क्या करना है, इसको जो इसकी जो टोटल डिस्टेंस है इसके अराउंड का, उसको हमें मीज़र करना है. सपोज़ वी आर टेकिंग वन थ्रेड, हमने एक थ्रेड लिया और हमने इसको मीज़र किया, यहाँ से स्टार्ट किया, उसको यहाँ तक रखा. सपोज़ वो थ्रेड आपका यहाँ तक आ गया, तो क्या आप इसको लिखोगे कि ये 4.5 है? नो, क्योंकि अभी अभी हमने सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन में ये बात प्रूफ की थी कि इनके बीच में बहुत सारे स्मॉल पॉइंट्स होते हैं. ओके, तो हम इसको कन्फर्मेशन नहीं दे सकते कि ये 4.5 ही होगा. ठीक है, तो इट मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल डज नॉट गिव प्रॉपर वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू, यानी कि सर्कमफ्रेंस की प्रॉपर वैल्यू नहीं होती, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ सकती. सो इफ़ सर्कमफ्रेंस की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो इट मीन्स हम उसको इरेशनल लिख सकते हैं. ओके, सो इट मीन्स सी इरेशनल है और बाय में ये डी गिवन है, और आपको पता है कि किसी भी इरेशनल नंबर को आप डिवाइड करोगे तो वो क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा. इट मीन्स इसका सॉल्यूशन इरेशनल आ रहा है, तो ये इरेशनल है, इट मीन्स पाई भी क्या है, इरेशनल. सो इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो सकता, ये हैंस प्रूव्ड है. क्या प्रूफ है इसमें कि जो पाई है ना बच्चे, वो क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा. क्लियर? सो डियर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.